लाइव स्ट्रीम ऑन है क्या? स्ट्रीम ऑन है? नहीं. हेलो एवरीवन. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ऑल राइट. ठीक है. So hello students, welcome back and we have started as you know कि हमने एक series start किया है where we are discussing previous year questions and also we are doing a short revision. So I welcome all you to the next session, that is quick revision and previous year question solving for science. ठीक है. So आज हम कर रहे हैं वैकेंसी. सबसे पहले we have MCQ. The MCQ says name the spherical mirrors. Name the spherical mirrors used as. क्या? The first one is which type of spherical mirror is used? Shaving mirror, rear view mirror in vehicles and reflectors in searchlight. तो ये कुछ टाइप के मिरर्स है. हमें पूछा है कहाँ यूज होता है. ऑलराइट, तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है? शेविंग मिरर. नाउ शेविंग मिरर आपने देखा है कैसे होल्ड करते लोग, एकदम इट इज हेल्ड वेरी क्लोज टू द फेस. ठीक है. एंड जो ये शेविंग मिरर होता है, इट इज, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, ये है कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर. कैसा मिरर है ये? कॉनकेव टाइप ऑफ मिरर. एंड हाउ डज अ कॉनकेव मिरर लुक्स? It has an inward curve. So the outer surface of concave mirror is coated and the inner surface of a concave mirror is reflective. So this type of mirror is used as shaving mirror. Now next we can see क्या है? Rear view mirrors in vehicles, right? You can see the mirrors which are used as a rear view mirror, जहाँ पे पीछे का हमें दिखता है जो ऊपर अपने इसके ऊपर होता है, ड्राइविंग सीट की जस्ट ऊपर. So that rear view mirror we use is convex mirror. कौन सा मिरर यूज होता है यहाँ पे? Convex mirror. And ये mirror we can say just opposite of concave. इसका surface होता है outward curve and the inner surface, ये जो inward curve है, this thing is coated surface and बाहर का क्या है? It is reflective surface. Now the last one, reflectors in searchlight. Reflectors in searchlight. सर ये reflectors क्या होता है? If you see जो टॉर्च होते हैं उनका शेप कैसे होता है? It is shape कुछ ऐसा होता है and there is light bulb. बल्ब कुछ यहाँ पे उनका होता है, right? and यहाँ पे ऐसा लेंस होता है and this is torch. searchlight. Okay? ये अपना छोटा सा searchlight. तो you can see इसको अंधेरे में हम यूज करते हैं. So how does this inner surface looks like? कैसा दिख रहा है? कौन सा मिरर है इसमें से? Which one? Come on. दोनों में से कौन सा दिख रहा है? Obviously, it looks like a concave mirror, right? So the mirror used in a searchlight inner, ये दिख रहा है आपको? Of course, ये किसके जैसा है? It is concave mirror, right? So एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं. तो शेविंग मिरर किसका है? कॉनकेव मिरर. ठीक है, बिकॉज इट इज हेल्ड वेरी क्लोज एंड जो हमें शेव करते टाइम अच्छे से शेव कर पाए, कुछ कट्स वगैरह ना लगे, उसके लिए वी यूज कॉनकेव मिरर जिसका इनर सरफेस is reflective and the outer surface is coated. And in rear view mirror it is used to see the car which are far behind. ठीक है, तो अच्छे से व्यू आ सके कि कौन सी कार पीछे हैं, right? And for that we use convex mirror. And the last one, the reflectors in searchlight. So this inner surface of searchlight is known as reflector and यहाँ पे mirror हम use करते हैं, we use concave mirror. And surprisingly one more thing, the position of this light bulb, ये जो light bulb है ना यहाँ पे guys, you can see this, there's a light bulb over here, right? इसको जो position होता है ना, फटाक से कमेंट करके बताओ, what is position of this light bulb? So light bulb का
पोजीशन क्या है इन फ्रंट ऑफ concave mirror. What is position of light bulb in front of concave mirror? फटक से let me see comments में क्या चल रहा है फटक से. Okay, there are many students जिन्हें join किया है now. Okay, संगीता, hello. श्रीशांत, Vilas. Okay, very good. Resham Gaikwad also joined. Arya. Okay, now tell me, what will be position of this light bulb in searchlight? Searchlight के अंदर ये कहाँ पे place होता है? Come on, everyone. What is position of this light bulb? Yes, आ रहा है, answers आ रहा है. Yes, किसने तो लिखा है? Resham has written between P and F, that is pole and focus. Sadly, बीच में नहीं होता है. It is at focus. So बल्ब का जो पोजीशन है, it is at focus. रीजन बहुत ही सिंपल सा है, फोकस पे क्यों है? बिकॉज whenever an object is at focus, अगर हम बल्ब कहाँ फोकस करेंगे, प्लेस करेंगे at focus, then the beam of this the rays of this bulb will travel at infinity, so we can see very far. because it can't be used, it is for it is used for searchlight, search operation में, so we should be able to see very far. इसलिए the position of this light bulbs is placed at focus, and because of that इसका जो image होगा, the rays will reach कहाँ पे? They will reach till infinity. Hence this light bulb is placed at focus. Same question आ सकता है कि headlights, कार का जो headlights होते हैं, in that headlights what is position of bulb? Same answer है, it will be at focus. Clear? चाहे आपको clear है, so फटाक से streams में रेशम गायकवाड़. ओहो, आई एम यजित. ओके, ओल्ड पन विल से स्टूडेंट यजित. नाइस नाइस, ठीक है. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हाँ, सो वी कैन सी ये क्वेश्चन आया है इन सीबीएसई 2015 एंड द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3 meters and area of cross section कितना है? 1.7 into 10 raised to minus 6 square meters and of resistance 3 into 10 raised to minus 2 ohms. Calculate resistivity. Now the question says calculate resistivity. Before we start with the question, let me give you a short quick revision of what is resistivity. See, resistivity is a property of any material, any conductor, by which if we change the length, and area of cross section, now area of cross section सुनने में बहुत ही सा डरावना वर्ड लग रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. area of cross section simply we can refer it as thickness. जैसे you can see this is a pen, right? इसका कुछ thickness है ना, so this part which shows thickness of entire pen, this exposed area is known as area of thickness. Basically इसको हम refer कर सकते हैं as thickness. So if we increase length, we can see resistance of a conductor will also increase along with the length. So we can say कि resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. Suppose we have a conductor of length 1 meter, हमने उसको stretch किया and the length has now become 1.5 meters. So length increase हुआ, right, by 0.5 meters. Hence we can say the resistance of that material, of that wire, will also increase basically. Next, that was about length. What about area of cross section जिसको हमने AC लिखा है, thickness? It is inversely proportional, guys. It is inversely proportional. That means if we increase the thickness, इसको हम stretch करेंगे, right? इसको हम stretch करें तो wire क्या होगा? Stretch करने पे it becomes thin. तो area of cross section क्या होगा? Reduce होगा, तो resistance बढ़ेगा. This thing is known as inversely proportional. And if we combine these two, let me write here equation 1, इसको हम लिख देते हैं equation 2. So
So from equation 1 and 2 can we write resistance is directly proportional combine करेंगे 1 upon L by A resistance of a material proportional to L by A, and if we remove proportionality we're gonna get a constant which is L by A. यहाँ पे हमें मिलने वाला है constant known as this constant को हम बोलते हैं इस प्रोनाउंस एज रो एंड इनका नाम है constant of resistivity. This thing is known as constant of resistivity. And our question is कि we need to find this resistivity. Okay, so let me just shrink it. Let me just इसको back करते हैं. All right, select करते हैं इसको. And थोड़ा इधर बस. Okay. Boys and girls, इतना अगर मैं इसको shrink करता हूँ, is it visible to you? Come on, everyone. अगर visible है, give me thumbs up, okay? Now, इसके आगे, if we just reshuffle this formula, we can get rho का formula. Rho equals to C. L by A extra यहाँ पे, rho तो already रहेगा. So we'll shift this L by A on the other side. So क्या होगा? Side change होगा तो flip हो जाएगा. So we can write R is already here. It will be A area upon L. So we'll be using this formula to get our resistivity of copper. And let me tell you, see resistivity of copper ना एक specific value है. कैसा value है ये? It is a specific value. See there are two types of values. Values दो तरीके के होते हैं. One is general value. For example एक classroom of students है. ठीक है, वहाँ पे जितने बच्चे होंगे सबका क्लास का नाम एक ही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास ऑफ 9th. सो जितने बच्चे उस क्लासरूम में हैं सबका क्लास क्या स्टैंडर्ड क्या होगा 9th. सो दैट 9 इज सेम फॉर एवरीवन, राइट? जनरल वैल्यू है, सबके लिए सेम है. ठीक है, बट आई टॉक अबाउट इफ आई से कि क्या इन सब बच्चों का रोल नंबर सेम है? नहीं, हर एक बच्चों का जो रोल नंबर होगा दैट विल बी डिफरेंट, राइट? सो क्लास का नाम जो क्लास नंबर है उनका जो स्टैंडर्ड 9, सबका स्टैंडर्ड सेम 9th है, पर क्या सबका रोल नंबर सेम है? नहीं ना. तो क्लास का नाम इज स्टैंडर्ड 9th, राइट? वो सबके लिए सेम है, पर रोल नंबर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, सबके लिए अलग है. सो व्हेन द वैल्यू इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ द मटेरियल्स और ईच ऑफ द सब्सटेंस, सबके लिए अलग वैल्यू है. वी कॉल सच वैल्यूज एज स्पेसिफिक वैल्यू. सो दिस थिंग रेजिस्टिविटी इज अ स्पेसिफिक वैल्यू. सो बहुत आप देखोगे इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी. क्यों? हर मटेरियल के अलग है. गोल्ड के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, स्टील के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है, प्लैटिनम के लिए अलग है, निकल के लिए अलग है. हर एक जितने भी मेटल्स आप सोच सकते हो सब मेटल्स के लिए दिस वैल्यू इज डिफरेंट, हेंस इट इज नोन एज स्पेसिफिक वैल्यू. बहुत बातें कर ली, एक्शन पे आते हैं थोड़ा. ठीक है, लेट अस मूव टू आवर न्यूमेरिकल. ओके, आई थिंक वी गोना यूज दिस फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स का हमने फॉर्मेट देखा है. यस एवरीवन, वी हैव सीन अ फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल्स. एंड न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी रिटन द फॉर्मेट फॉर न्यूमेरिकल इज GTFSA, where G stands for given. G stands for given. तो हमें कौन कौन से वैल्यूज दी है? लेंथ ऑफ वायर 3 मीटर गिवन में आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी गिवन, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर किस में आएगा? गिवन. जो वैल्यूज हमें दी है इट विल बी गिवन. तो इसको जरा मैं इरेज करता हूं, यहाँ पे वैल्यूज लिख दो आपके लिए. ओके, सो गिवन में सबसे पहले क्या आएगा? वी गोना राइट length L equals to 3 meters. All right, next area of cross section 1.7 into 10 raised to minus 6 meters square. Now what we are left with? Resistance of the wire, resistance of the wire is 3 into 10 raised to minus 2 ohms. Words में लिखा है, just write the symbol, this symbol for ohms. Okay, this thing is given, all the information which is provided to us is written is given. Next उसके बाद आएगा to find. What we need to find? We need to find resistivity of copper. The symbol for resistivity is rho, question mark. And for this, which formula we gonna use? We will be using rho equals to resistance into length. Sorry, उल्टा लिख दिया हमने. Resistance into एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ. उसके बाद लास्ट में लिख देते हैं प्रूफ, जो कैलकुलेशन का पार्ट है, राइट? विल राइट प्रूफ. तो आई जस्ट
इसको थोड़ा मैं ऊपर हल्का सा मूव कर देता हूँ, ठीक है बस। ओके, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी 3 मैजिकल वर्ड्स। जो आप सोच रहे हो वो नहीं, हम लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा इंप्रेशन बढ़ता है। एंड आफ्टर इट विल राइट जस्ट फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन एल। सो व्हाट द रेजिस्टेंस वैल्यूज पुट करते हैं, रेजिस्टेंस इज, आई थिंक इट वाज, नीचे कर लेते हैं ना, रेफरेंस के काम आएगा बस, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 3 into 10 raised to minus 2 into A. A is 1.7 into 10 raised to minus 6, and lastly the whole divided by length 3. तो हमने हर वैल्यूज क्या कर लिए, पुट कर लिए, equals to rho. Now we can see बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, this 2 3 will get cancel. now दोनों का बेस से मैं पावर, तो 10 10 से मैं, तो -6 -2 कितना आंसर आएगा, -6 -2 ऑफ कोर्स ये हो जाएंगे ऐड, एंड द आंसर विल बी 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter. So ohm meter is unit of resistivity, and ये यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता, given to find formula proof हमने लिख दिया, lastly we need to write our final answer. therefore करके यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रेजिस्टिविटी, क्या लिखना है, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 raised to minus ohm meter. यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, हमें यूनिट मिस करना नहीं है। आई होप आपको ये सम समझा है, राइट? इसको मैं श्रिंक कर सकता हूँ, देन यू कैन सी इन टोटलिटी क्या है पूरा सम। ओके, फटाक से कमेंट्स में गिव मी थम्स अप अगर आपको सम समझा, कोई डाउट नहीं है, कम ऑन। एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। ओके, ओके, एंजल ने हमें ज्वाइन किया है, ओ माय गॉड, एंजल, वेलकम एंजल। ओके, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट? ऑलराइट, ओहो क्वेश्चन क्या है, ओके, let me just help you out. ये है एक MCQ, this will be an MCQ. So इससे you have both questions, long questions है, short questions है, numericals है, we have MCQs also, ठीक है? So to an astronaut the sky on the moon will appear dark because option number 1 there is no light on the moon. सही है क्या, मून पे लाइट नहीं है? I think लाइट है, सन है ना वहाँ पे। there is no atmosphere on the surface of the moon. promising option है, of course मून पे एटमॉस्फेयर, ये मून है इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है? the surface of the moon absorbs all the sunlight and out of this we can say, क्या बोला, sky on the moon. क्या मून पे स्काई है? व्हाट इज अर्थ पे स्काई क्या है? अर्थ पे जो हम स्काई बोलते हैं, इट इज व्हाट इज स्काई, ठीक है? अर्थ पे द स्काई जिसको हम बोलते हैं आसमान, इट इज आवर एटमॉस्फेयर, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या मून पे एटमॉस्फेयर है? एवरीवन यस और नो, कमेंट्स में जल्दी, क्या मून पे एटमॉस्फेयर है? अगर एटमॉस्फेयर होगा तो हमें स्काई दिखेगा, एटमॉस्फेयर नहीं तो स्काई नहीं दिखने वाला है। कम ऑन, कमेंट करो फटाक से, क्या मून पे वी हैव एटमॉस्फेयर? यस एवरीवन, यस और नो मैं आंसर आना चाहिए, यस और नो, स्टार्ट। यजीत का सबसे पहले आंसर आया है, वेरी गुड, एंड द ऑप्शन इज नो। सुशांत हैज आल्सो ऑप्शन, क्या होता है यजीत, बहुत फास्ट है। आर हैज आल्सो कमेंटेड ऑप्शन बी। अगर इस एमसीक्यू में अपना ऑप्शन किया है, सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, कांग्रेचुलेशंस गाइस, क्या बात है। ओके यजीत तो इज ऑन फायर, आंसर भी दिया है, नो है सर, फिर नहीं है सभी बोल रहा है, अभी ऑप्शन लग गया, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस, ठीक है। I hope then the option is of course option B, because there is no atmosphere on moon, so there will be no sky and hence there is a darkness, right? Okay, अगला क्वेश्चन, write the condition in which, क्या क्वेश्चन लिखा, come on, write the conditions
इन विच वी कैन से, यहाँ पे क्या हो रहा है, write the conditions, write the conditions, come on guys. Yes, बहुत सारे लोग के options. Yes, very good. Okay, now guys, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. सब लोग बोलते हैं ओबे करता है, कब नहीं करता. अंडर राइट द कंडीशंस इन विच ओम्स लॉ इज ओबेड. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू, ओम्स लॉ ना कोई यूनिवर्सल चीज नहीं है. देयर आर मेनी मटेरियल्स जो ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं है. ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं है. एग्जांपल्स क्या उसके, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर बहुत पहले यूज होते थे. इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दे डू नॉट फॉलो. जंक्शन डायोड्स, they do not follow Ohm's law. There are many materials which does not follow Ohm's law. So in which write the conditions in which Ohm's law is obeyed. तो किस condition में Ohm's law can be followed properly without any change. तो क्या है, basically this thing depends upon physical conditions. किस पे depend करता है? It depends upon physical conditions of the conductor. That is, इसमें आएगा टेम्परेचर, लेंथ, है ना. और मैंने यहाँ पे ए लिख रहा हूं, मुझे फटाक से कमेंट करके बताओ व्हाट दिस ए स्टैंड्स फॉर. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ए लिखा है मैंने, ए का मतलब बताओ. ए. एंड लास्टली नेचर ऑफ, yes, nature of conductor remains unchanged. So अगर ये सब conditions है तो proper Ohm's law फॉलो करें. Come on guys, what does A stands for? A जल्दी A किस क्या है, what does A stands for? जीत, very good. जीत का सबसे पहला आंसर है and his answer is absolutely right. हमने जस्ट अभी लिखा था A stands for area of cross section, that is thickness of a material. आपको यहां से हिंट आ जाना चाहिए था. Alright, and the nature of conductor remains unchanged. मतलब अगर मेटल है, आपने उसको किसी और सबसे स्वैप नहीं किया, मेटल से मतलब नॉन मेटल ले लिया, ऑफ कोर्स ओम्स लॉ फॉलो होने वाला नहीं है. सो द नेचर ऑफ द मटेरियल शुड रिमेन सेम. मटेरियल भी चेंज नहीं करना है. कॉपर है तो कॉपर, आयन लेकर आओगे तो ऑफ कोर्स चेंज होगा, ओम्स लॉ फॉलो करेगा, पर प्रॉपर्टीज हल्की सी चेंज हो जाएंगी. सो वी डू नॉट चेंज आवर सब्सटेंस. सो द नेचर ऑफ सब्सटेंस शुड रिमेन और मटेरियल शुड रिमेन अनचेंज. सो अगर आपके फिजिकल कंडीशंस, दैट इज टेम्परेचर, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन सेम, देन द ओम्स लॉ विल बी ओबेड प्रॉपर्ली. इसमें कुछ भी चेंज होता है तो ये डिफर कर जाएंगे. एंड ये 2 मार्क का क्वेश्चन आया था इन 2012 एंड 13 इन CBSE. सो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, CBSE देता रहता है ना. ओके, और भी ट्रिकी क्वेश्चंस हम देखते हैं. आगे क्या है. ऑल राइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, हो अनदर MCQ. ठीक है. Alright, the question is for verifying Ohm's law, we design an electrical circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit component. We find that with respect to the resistor, the dash क्या होना चाहिए with respect to resistor. अभी डायग्राम में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ. ये कुछ ऐसा डायग्राम आपने लिया. If we see, okay, now ये जाएंगे ऊपर. यहाँ पे भाई साहब आप जाओ, थोड़ा सा जूम इन इधर बस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, ammeter is connected in parallel and voltmeter is connected in series. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, वी नीड टू हैव अ सर्किट, राइट. हमें एक छोटा सा सर्किट देखना है. So if we see a circuit, एक सर्किट ड्रॉ कर दो आपके लिए मैं. There is a resistor, okay.
सो ये जिगजैग रास्ता क्या है, रजिस्टर है। ओके, यहाँ पे एक डिवाइस है, उसका नाम नहीं लिखूंगा कौन सा डिवाइस है। यहाँ पे वी हैव पावर सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। कुछ लोग बैटरी नाम सुनकर भी हंस रहेंगे, हंसना नहीं है। एंड ये दिस थिंग इज वायर, और यहाँ पे एक डिवाइस है, इसका भी नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा लिख देंगे। और ये है कि दिस इज अ वोल्टेज, ओके, एंड दिस थिंग एज अ रजिस्टर। ओके, वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन इज कि एन एमीटर, तो इसके अंदर यहाँ पे दोनों पे क्या होना चाहिए, कौन सी चीज पैरेलल में होगी। ऑप्शन इज की एमीटर अपने पास एक ऑप्शन है जिसको हम नोटेशन लिखते हैं विद ए, एंड नेक्स्ट वन इज वोल्ट मीटर and इसका symbol is V. So out of this voltmeter, ammeter, which will be in series and which will be in parallel connection with the circuit, right? Or the component. The first option is ammeter is connected in parallel and voltmeter in series. Second is ammeter is connected in series and voltmeter in parallel. Ammeter and voltmeter both are series and both are parallel. So क्या किया जाए, ये बहुत ही बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं इन आवर डायग्राम्स एंड एवरीवेयर। बहुत ही इजी सा हल्का सा गूगली वाला क्वेश्चन है। दैट्स देखो, ammeter is always connected in series with the circuit, okay, and जो इसका positive terminal है is fill face positive and negative terminal is face negative terminal of the battery, and जो voltmeter होता है guys, it is always in parallel with the circuit, it is always in parallel with the circuit। so ये देखो कौन सा मैच कर रहा है, क्या अपना ऑप्शन ammeter connected in parallel, नहीं नहीं गलत है, ammeter in series, okay, right, and voltmeter in parallel, so we got our answer, that is option B। फटाक से कमेंट में बता दो क्या आपका भी सेम आ रहा है ऑप्शन बी। यजीत, ammeter is connected in series, yes, Yajit, you got the right answer, right, very good, all right, come on, can also have the screenshot and इस जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसका पीडीएफ कैन बी लेटर शेयर विद द वीडियो। अब तो इस वीडियो जब लाइव एंड होगा, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, उसमें विल गेट द लिंक ऑफ दिस पीडीएफ, यू कैन डाउनलोड एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट। आई विल रिक्वेस्ट माय टीम, प्लीज शेयर करना इसको आप इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। नाउ आई थिंक वी शुड मूव द नेक्स्ट वन। Question number 6. Calculate the number of electron consisting in one coulomb of charge. All right. Calculate the number of electrons. So we need to calculate there how many electrons in one coulomb of charge. Charge का symbol is Q. Right. So tell me what is charge on one electron. It is negative because electron है 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. See, it is minus 19, right? तो पूरा आपको चार्ज तो नहीं है। So how many electrons do we need to make it 1 coulomb? So एक चार्ज क्या होगा? It is 1 coulomb. So 1 coulomb बनाने के लिए how many number of electrons do we need? So again numerical है, so numerical का there is a format, right? That format will be followed here. So सबसे पहले क्या लिखेंगे? Will be write पे क्या रहेगा? Given, क्या गिवन है? सो चार्ज कितना है? चार्ज इज 1 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And remember the charge on proton and electron is same. Charge on proton and electron is same. So उनके क्या डिफरेंस होगा? चार्ज जब से अमाउंट सेम है, सी अमाउंट सेम है, डिफरेंस क्या होगा? साइन का। So this is electron, so we will be writing here negative. If it will be a proton, we will write here, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? We'll be writing positive. बस बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। Amount of charge is same, polarity is different. We have different poles. Okay, ये हो गया दो चीज। Next, what we need to find? यहाँ पे हम लिखेंगे number of electrons, and the number of electrons is shown with n. N stands for number of electron. What formula will be using here? ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। Charge equals to number of electron into charge of electron. Charge equals to number of electrons into charge of electron, right? ये तो हो गया। इसके बाद next we'll write here proof. Proof क्या आएगा? Proof start करेंगे with 3 magical words. Yes, 3 magical words क्या है? We know that. अच्छा, we know that के बाद हम क्या लिखते हैं? जल्दी बताओ। We know that के बाद क्या आना चाहिए? Come on, comment section में। We know that के बाद क्या आना चाहिए? Come on guys. We know that के बाद क्या आना चाहिए?
वी नो दैट आना चाहिए कॉमा, सो q इक्वल्स टू ne. नाउ चार्ज में पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें टोटल चार्ज इज 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, e वी नो, तो इसको तो रीशफल करेंगे, सो वी कैन राइट n नंबर ऑफ चार्ज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन e. So how many charge? एक कूलम का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऑन वन चार्ज इज 1.6 into 10 raised to minus 19. 10 को शिफ्ट करेंगे हम ऊपर की तरफ, so this negative 19 will become positive. So n equals to 1 upon 1.6 into, और इसको मैं लिख देते हैं into positive 19 and 1 by 16, sorry 1 by 6 अगर हम डिवाइड करेंगे we'll be getting 0.625 and the answer is this. So this many electrons will be required for 1 coulomb of charge. And finally therefore करके लिख देंगे क्या, we'll be writing here number of electrons is 0. अगर आपको चाहिए तो you can shift also, एक पॉइंट पीछे शिफ्ट करोगे so it will become 18, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं by shifting just 1 point पीछे, 6.25 into 10 raised to positive 18 electrons बस. So this thing can be also written as like this, एक पॉइंट शिफ्ट करते हैं ना, 6.25 into 10 raised to 18 electrons. So this is a final answer. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ले आता है, 2013 में भी ये आया है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत बार आया है हल्का सा ट्विस्ट करके. यूजुअली दिस क्वेश्चन इज सीन विद इन द फॉर्म ऑफ सब कैटेगरीज, कि जहाँ पे क्वेश्चन होता है एदर इन क्वेश्चन नंबर, यू नो अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, बट विल बी सीइंग दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद अदर क्वेश्चंस. 1 या 2 मार्क ले आता है अलॉन्ग विद अदर क्वेश्चन, सो इट इज क्वाइट स्मॉल इजी क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. नाउ ऑलराइट, आगे मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ओके, so an image 2 by 3 of the size of the object is formed. All right, आगे है, ठीक है, is formed by convex lens. Convex lens कौन सा टाइप ऑफ लेंस है? कमेंट करो जल्दी फटाक से. टेल मी convex lens is which type of lens? Is it a diverging lens or it is a converging lens? कौन सा टाइप ऑफ लेंस है? कमेंट सेक्शन में फटाक से जल्दी एवरीवन. At by distance at B, U is a distance by 12 centimeters. ऑब्जेक्ट है कितना at B? अच्छा यहाँ पे स्पेस होना चाहिए. At B ऑब्जेक्ट A पे था, at E U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? दिया 12 centimeters from it. Find the focal length of the lens. Okay, so here we have ratio of image size, U दिया है, we need to find convex lens image formed by this. Okay, all right, फटाक से कमेंट से पहले बताओ, then स्टार्ट करते हैं. convex lens is which type of convex lens? कौन सा लेंस है? Is it a converging lens or it is a diverging lens? Come on guys, fast. बहुत ही अनिचुअल सा नाम है, लाइका और लिक्का, but the answer is correct. Okay, so start करते हैं. Let us first see what information is given to us. सबसे पहले the lens we are having is convex lens, which is a converging lens. That means it will have a positive focus. Now we can see the image which is formed, that is H, it has a ratio of 2 by 3. इसका ratio क्या है? 2 by 3, and the image is created in front of lens at 12 centimeters. कितने दूरी पर है इमेज? 12 centimeters. All right, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया, बाकी कुछ दिया नहीं है. What we need to find is, हमें find क्या करना है? We need to find what is the focal length of the image. Then formula क्या यूज करेंगे? We all know there is
There are two formulas in this chapter. Come on, फटक से दो formulas क्या है? First one is magnification h dash upon h equals to v by u. Second क्या है? Focal length 1 upon f equals to v plus u. Sorry, v minus u, not plus, minus u. ये दो formulas हम use करने वाले हैं. Now इसके आगे will write here proof. Proof में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? Yes, we know that. उसके बाद आएगा कॉमा. नाउ गाइस सबसे पहले क्या करेंगे? वी नो द रेशियो, राइट? यहां से विल गेट द वैल्यू ऑफ u. v का हमें ऑलरेडी पता है. बाय यूजिंग दिस रेशियो h2 वी हैव द रेशियो, राइट? यहां से विल गेट, एंड हमें v भी पता है, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ u, उसे हम पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला एंड विल गेट द फोकल लेंथ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो इसको थोड़ा अगर हम रीशफल करेंगे, विच इज h डैश अपॉन h equals to v upon u, right? So what we can have is, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमें u चाहिए तो u के लिए क्या करेंगे? Simply will shift will shift. Okay, so यहाँ पे लिखेंगे u equals to, u को हमने शिफ्ट किया उधर साइड और पूरा यहाँ पे टर्म आया तो v. देखो u कहाँ शिफ्ट किया हमने? यहाँ से, तो इट फ्रॉम न्यूमरेटर, सो डिनोमिनेटर से कहाँ गया? न्यूमरेटर में, एंड दिस होल टर्म विल बी शिफ्टेड हियर, सो इट विल बी h बाय h डैश. ये देख लो क्या गया यहाँ पे, ध्यान से एक बार देख लो, देन आगे करते हैं. व्हाट वी हैव डन इज, इन दिस u जो डिनोमिनेटर से हमने शिफ्ट किया क्या यहाँ पे? हियर. सो फ्रॉम डिनोमिनेटर इट हैज शिफ्टेड टू न्यूमरेटर एंड दिस होल टर्म हैव शिफ्टेड हियर, सो ये फ्लिप हो गया. नाउ यू कैन सी the value image distance कितना है? v 12 and the ratio is, it is 3h upon 2h. now इसमें अगर सॉल्व करेंगे, what will be u का वैल्यू? h got cancelled, 2 1s are 6 are 6 into 3 is 18, right? And by Cartesian sign convention we can write, by Cartesian sign convention we need to write कि object is always on the left hand side of the lens, so this distance will be negative. So यहाँ से we got the value for object distance, कि object कितना दूर place किया है. Now we know v का value क्या है, we just got u का value. Can we get f का value? Of course we can get. तो इसको थोड़ा सा ऊपर shift करते हैं guys and आगे बढ़ते हैं. Okay, I think we need to select this all, back करते हैं. Okay, इसको हम पूरा ऐसा नहीं गड़बड़ी सर, गड़बड़ी कर दी तुम. सिलेक्ट आ रहा है नहीं ना? थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं ऐसे. ऊपर क्लिक करके नीचे, बस आ गया. फैंटास्टिक, ठीक है. ओके, सो दोनों वैल्यूज मिल चुके हैं एंड इफ वी कंटिन्यू यहाँ पे लिखते हैं, सो 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 अपॉन u. ठीक है. नाउ v इज 12 माइनस 18, अरे बाबा माइनस 18 u का वैल्यू, राइट? माइनस माइनस ऑफ कोर्स क्या आ जाएगा? प्लस, so it will be plus 1 by 18 and 12 by 18. So is there any common multiple? See क्या होता है ना, बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, what they do directly do is कि they cross multiply, है ना? तो 18 में 12 करेंगे, then इधर 18 इधर 12, तो क्या होगा ना, नीचे की विल गेट सम बिगर नंबर, ऊपर इस एडिशन करोगे नंबर आएगा, डिवाइड करने में डिफिकल्टी होगी. सो बिफोर वी जंप ऑन टू दिस फटाक से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो इजी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है. तो शाम बैठो एंड जस्ट ऑब्जर्व, क्या इज देयर एनी नंबर जो 12 की टेबल में भी आता है और 18 की टेबल में भी आता है, दोनों जगह था. इज देयर एनी नंबर जो दोनों टेबल में आता है? तो ध्यान से देखो. सो वी कैन सी यस 36, राइट? क्या था? 36. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 2 विल गेट 36 एंड इसको करेंगे हम 3 से, तो क्या मिलेगा हमें? 36. So we'll multiply, यहाँ पे जरा हटा देता हूँ मैं. If you multiply this thing with 3 तो आएगा. So can we write यहाँ पे? So it will become 1 upon f, 1 upon
F ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 मल्टीप्लीकेशन नीचे 3 × 12 36, 18 × 2 36, तो कॉमन क्या आ गया 36। देखो कॉमन क्या आया 36 which is 5/36। now what will focal reciprocal लेते हैं, it is 36/5। फटक से कमेंट्स बताओ what is 36/5, जल्दी कमेंट्स में 36/5 क्या होता है। let us get the final answer 36/5, come on कमेंट्स में what is 36/5, क्या बात है यजित एज यूजुअल एकदम फटक से बता दिया भाई ने, इट इज 7.2 सेंटीमीटर। और द फोकल लेंथ इज 7.2 सेंटीमीटर्स। अभी फाइनल आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे नीचे, व्हाट विल राइट इज द फोकल लेंथ फटक से, देयरफॉर द फोकल length of the lens is 7.2 centimeters, right? Clear है? I hope this question is clear. Let's just bring it down, थोड़ा सा shrink करते हैं। all right, I hope this whole thing is visible to you, okay? anyone please give us thumbs up, we have last 15 minutes and we have got, you see 1 2 and 3 questions, ठीक है? come on thumbs up दो फटाफट, क्वेश्चन देखो इस पे कोई डाउट है, and then we can move to the next one, come on guys, देखो सेंटर में एकदम है, आगे बढ़े, yes thumbs up come on। and यहाँ पे okay, hey students download the previous year right here, oh ho we also got, so guys we can see comment section में we have a pinned comment जहाँ पे लिखा है we have all the previous year question papers, एक आपसे ड्राइव का लिंक शेयर किया गया है, so you can click on that and आपको year wise जितने भी all OC, as we know कि CBSE क्या करता है पूरे एंटायर इंडिया में एक बार में एग्जाम कंडक्ट करते हैं, so एरिया वाइज जोन वाइज पेपर सेट्स होते हैं, so all those papers क्वेश्चन पेपर्स है ना per subject around 50 to 45 sets of question papers है ना is in this folder for every subject, so please go to the folder, वहाँ पे सर्च करो and सॉल्व करते कमिंग सेशंस में, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? सो आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे, यू कैन सबमिट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो लेटर, ओके? चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, चलो ओके, थम्स अप आना स्टार्ट हो गया है। लिखा इज आकांक्षा, सॉरी मैम आकांक्षा मैम हमारी फ्रॉम न्यू पनवेल, ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज कि आरएस किधर है? वी कैन सी हियर देयर इज अ डायग्राम, राइट? यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है, दिस इज अ ग्लास स्लैब through which we have a ray which is entering into glass slab। सब जस्ट मैं लिख देता हूँ कौन सी क्या चीजें हैं, ओके? सो दिस थिंग दैट यू कैन सी इज ये दिख रहा है, आई थिंक बहुत ही टाइनी एरो, मैम क्या एरो दिख रहा है प्रॉपर्ली, ओके? लेट मी सी इन द वीडियो, थोड़ा लैग होके चल रहा है वीडियो पर, ठीक है? यूट्यूब थोड़ा सा पीछे चलता है, डिले करता है हमारे वीडियो को। क्वेश्चन कट रहा है क्या? यस गाइस, थिंक क्वेश्चन क्रॉप हो रहा है, बहुत ज्यादा जूम है ना, लेट मी जस्ट टेक इट बैक थोड़ा सा ऐसा अंदर, ओके? नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे दिस रे विच इज एंटरिंग इनटू द ग्लास स्लैब, क्या है? दिस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दिस रे इज अ इंसिडेंट रे, ये भाई साहब है नॉर्मल, दिस थिंग इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस वन इज इमर्जेंट रे। नाउ ये ग्लास स्लैब है ऑफ कोर्स, सो यहाँ पे क्या है? दिस इज एयर, any glass slab, and we all know air is a rarer medium as compared to glass, the glass is glass slab, of course it is a denser medium। now यहाँ पे ध्यान से you can look at this कि यहाँ पे कुछ सैंडविच सिचुएशन बन रहा है, क्या बन रहा है? सैंडविच कैसे होता है? बीच में स्टफिंग होती है, ऊपर होता है ब्रेड एंड नीचे अगेन होता है ब्रेड, सो कुछ वैसा सिचुएशन है, ऊपर एयर नीचे एयर बीच में ग्लास स्लैब। सो जब भी ऐसा कुछ होता है वी कैन सी ऐसा थ्योरी बनेगा, इंसिडेंट रे दिस एंगल इज आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड ये जो एंगल है n2 का, दिस is n1 n2, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, राइट?
एंड जो ये आर एस लिखा है, आर एस रिप्रेजेंट द लैटरल डिस्प्लेसमेंट. Lateral displacement will come to this of light of ray emerging out of a rectangular glass slab of thickness AB. So what is thickness of glass? It is AB. If the thickness of a glass slab is increased to AC, oh my god, my god, my god, my god, ध्यान से देखो. So ये glass slab इतना है, right? इतना thick है, right? AB. उसको इसको लिखते हैं as H1 original length, original height जो भी. एंड देन इसको इंक्रीज करके हमने कर दिया, कितना किया भाई, देखो ध्यान से, दे हैव डन, इसको हम लिखते हैं H2. सो थिकनेस बढ़ गया, ऑफ कोर्स बढ़ गया. नाउ लाइट नीड्स ट्रैवल मोर, राइट? सो इफ द थिकनेस ऑफ ग्लास इज इंक्रीज टू Hb, देन द लैटरल डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट, विल इट इंक्रीज, डिक्रीज, क्या होगा, क्या होना चाहिए? ठीक है. सो नाउ क्या आपको क्या लगता है, लेंथ बढ़ाने पे if we increase the thickness, if we increase the thickness of our glass slab, so what will happen to this lateral displacement? Okay, lateral displacement क्या होता है? See, this is our incident ray, right? This is our incident ray, and when it enters from rarer to a denser medium, it bends towards the normal, and when it exits, it goes back from denser to rarer. It will move away from the normal. And अभी ध्यान से देखो, अगर ये रे ऐसा आ रहा है, राइट, एंड ग्लास स्लैब नहीं होता, ग्लास स्लैब होता नहीं, सो व्हाट विल हैपन टू द रे, इट विल पास स्ट्रेट, राइट, बिकॉज लाइट इज अ रेक्टिलिनियर, लाइट शोज रेक्टिलिनियर मोशन, इट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बट ग्लास स्लैब आ गया, उसके से वो अपने लाइन से, अपने लेंथ से, अपने ओरिजिनल लाइन से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, डिस्प्लेस हो गया. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. से क्या बोलते हैं हम, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एक चीज याद रखना, डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ऑप्टिकल डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना ज्यादा डेंसिटी ऑफ योर सब्सटेंस विल इंक्रीज, उतना ज्यादा क्या होगा उसका, बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड दिस थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. दिस थिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट. This thing is inversely proportional to velocity of light. Okay, so यहाँ पे देखो, they're increasing the thickness, so light को ज्यादा travel करना पड़ेगा. So what will happen to this lateral displacement as the thickness of our substance is increasing? Yes, the lateral displacement will also increase. So can we say, we'll say कि RS will increase. क्यों? थिकनेस बढ़ रहा है, इसलिए आरएस क्या होने वाला है, इट विल इंक्रीज. ओके, सो आरएस विल इंक्रीज. ऑलवेज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नोटबुक्स में लिख लो, जो हमारे देयर आर स्टूडेंट्स विच जो वेदा से नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन. दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. U stands for optical density. Density. What does optical density mean? Optical density means substance जिनसे light pass हो सकता है, उनका those are optical substance, or simply we can say optical mediums. Optical medium, तो उनका density is optical density. जैसे एयर, वाटर, सब ऑप्टिकल मीडियम, इनका डेंसिटी इज ऑप्टिकल डेंसिटी. N stands for refractive index, and of course V stands for velocity of light. ये रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिफ्रैक्शन में अगर ये चीज हमें पता है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, लाइट का चैप्टर. ऑलराइट, ठीक है. आई होप आपको ये समझ गया रहेगा. नाउ थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं. लास्ट 2 क्वेश्चंस, 10 मिनट से लास्ट 2 क्वेश्चंस है. क्या हम कर पाएंगे? कम ऑन एवरीवन, थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन गाइस. ओह माय गॉड, चलो चलो, बच्चे भी एकदम फुल एनर्जी में, मेरे जैसे. क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. इफ द इंसिडेंट रे
if the incident ray in the glass and its corresponding refracted ray is in the air, the angle of incidence will be what? चलो इसको अगर हम डायग्राम में देखें, फटाक से देखो क्या है ये क्वेश्चन। क्या बात है, कमेंट्स में तो ओहो थम्स अप की बारिश हो रही है। कम ऑन गाइस, ओके गाइस, ओके चलो आ जाओ, ठीक है। इफ द इंसिडेंट रे इन द ग्लास स्लैब इज करस्पॉन्डिंग टू रिफ्रैक्टेड रे इन द एयर, सो इंसिडेंट रे किधर है? ग्लास स्लैब में। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ है? इसके अंदर। इसका डायग्राम, इफ आई जस्ट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस, सो आपके लिए कुछ ऐसा आएगा। सपोज ये ग्लास स्लैब है, ये क्या ग्लास स्लैब है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ मैं, रुको। और इवन बेटर एक दूसरा जुगाड़ कर सकते हैं बच्चों, क्या पता है? वी गॉट अ सिमुलेशन, राइट? सिमुलेशन, फिजिक्स लाइट, पूरा बारा करते हैं इसको। ऑलराइट, नाउ थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे ग्लास से इंसिडेंट रे आ रहा है इनटू एयर, ये क्वेश्चन था, राइट? देखो, सेम मीडियम में जा रहा है, सेम मीडियम, ग्लास मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर, हाँ बस आया। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था ना गाइस, इसलिए ऐसा हो रहा था। सो ऐसा हो रहा है। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूं आपके लिए मार्कर, ओके नाउ, सो दिस थिंग इज अ नॉर्मल, ये दिख रहा है आपको क्या है? कलर चेंज करते हैं, कलर क्या लेंगे? ये ले लेते हैं रेड, ठीक है। सो दिस थिंग इज नॉर्मल, ये है अपना इंसिडेंट रे एंड दिस विल बी आर रिफ्रैक्टेड रे। सो यू कैन सी रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है? रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग इन एयर एंड इंसिडेंट रे कौन है यहाँ पे? इंसिडेंट रे अपना यहाँ पे ग्लास में, राइट? सो क्वेश्चन सेज इफ द इंसिडेंट रे इज इन द ग्लास एंड इज करस्पॉन्डिंग, क्या होगा? सो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया है, ए दिया है क्या? इक्वल I इक्वल्स टू आर। क्या होगा? क्या रिफ्रैक्शन में कभी I इक्वल्स टू आर हो सकता है? टेल मी, इज देयर एनी स्पेसिफिक कंडीशन जहां पे I इक्वल्स टू आर हो सकता है? क्या यहाँ पे I इक्वल्स टू आर है? नहीं भाई, ये एंगल I है, देखो ना कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, क्या है सर? क्या होगा? क्या उल्टा लिख दे, क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या दिया है? इट इज स्मॉलर, कौन यहाँ पे स्मॉलर है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन सिंपली देता हूं मैं आर। ऑप्शन सी क्या दिया है? ऑप्शन सी इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंड लास्ट ऑप्शन डी क्या है? डी इज नन ऑफ द अबव। क्या लगता है आपको? जरा डायग्राम देखो, टेल मी व्हाट इज रेशियो ऑफ आई टू आर, कौन बड़ा है कौन छोटा है? नन ऑफ द अबव। जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें तो मेरे को यही लग रहा है, कौन सा लग रहा है? आई थिंक दिस वन, ऑप्शन बी, स्मॉलर देन द आर। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज आई, यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, एंगल आई is smaller and angle r बड़ा है। Simply ना, the ray is moving away from the normal ना guys, ray किससे मूव हो रहा है? Away from the normal, so it will move with a bigger angle। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड, that is option B is correct answer, right? Smaller than r, right? चलो फटाक से बैक टू आवर क्वेश्चन, इसमें एक बार कर लेते हैं मार्क कट, ओके। सो यहाँ पे क्या है? अगेन यहाँ पे अगर मार्क करेंगे तो स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रेफरेंस का डायग्राम बना दूंगा, पीडीएफ जब आएगा उसमें डायग्राम रहेगा तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। सो दिस इज आवर ग्लास लैब। रे यहाँ से हमने ऐसा शूट किया, राइट। सो दिस इज आवर इंसिडेंट रे। ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम नॉर्मल। ये ड्रॉ कर देता हूं मैं यहाँ पे नॉर्मल, एंड जो रिफ्रैक्टेड रे बाहर जाएगा उसको हम बनाएंगे येलो से। येलो से क्या बनाए, ग्रीन से बना दो। ये सो दिस रे विल मूव लाइक दिस। सो यहाँ पे एंगल आर है, ये एंगल आई है। सो इसमें एंगल आई छोटा, एंगल आर बड़ा। ऑप्शन बी। ये है ग्लास, ये है एयर। ओके चलो फटाक से डन गाइस, कम ऑन कमेंट सेक्शन भर दो पूरा। ऑप्शन बी बेस्ट बेस्ट बेस्ट। आकांक्षा इज ऑलवेज राइट, यस या आपने सही बोला था। ऑलराइट मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन आ जाओ सब लोग। ओके द स्टूडेंट, okay again we have some numerical over here. Okay, a student has focused the image of an object of height. Okay, we got height of our object. एक सेकेंड इसको कलर चेंज कर लेते हैं। height of our object h dash, sorry h, 3 centimeters on a white screen using concave mirror. Now again convex lens, converging lens आपने कमेंट्स में बताया था। Now tell me what about concave mirror? Is it a converging mirror or diverging mirror? Come on, फटाक से, concave mirror, converging or diverging, of focal length 12 centimeters. Okay, very good. If the distance of the object from the mirror is 18 centimeters, 18 centimeter दूर है distance of object, alright? Find the value of following. What are the followings? The first thing that we have is distance of the image, that we need to find v, and height of our image. Question, come on, come on. कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है? नो नो नो, देनी नहीं, डाइवर्जिंग कॉनकेव मिरर गाइस, नॉट लेंस। मैं मिरर की बात कर रहा हूं, फोकस मिरर। यस विलास पाटिल, आई थिंक ही और शी, जो भी इनका नाम है, प्लीज योर आंसर वाज राइट, इट इज कन्वर्जिंग। ध्यान दो ध्यान दो, मिरर में उल्टा होता है लेंस, एंड मिरर में इट इज अपोजिट गाइस। मिरर एंड लेंस में अपोजिट होता है। इफ यू राइट, यहां पे देखो ऐसा कुछ बनाते, यहां पे विल राइट कन्वर्जिंग, यहां पे लिख देंगे हम डाइवर्जिंग। सो मिरर में कन्वर्जिंग इज कॉनकेव, याद रखना प्लीज, रिमेंबर दिस। मिरर में कन्वर्जिंग इज कॉनकेव एंड डाइवर्जिंग उल्टा है, कॉन्वेक्स। बट इन लेंस फ्लिप हो जाएगा, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, विच विल बी कॉन्वेक्स, एंड ये हो जाएगा यहां पे कॉनकेव। सो कॉनकेव लेंस इज अ कन्वर्जिंग, सॉरी अपना डाइवर्जिंग लेंस, बट वहीं पे कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ध्यान रखना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग टू द न्यूमेरिकल्स। ओके इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते देखते हो पाएगा क्या? ओके माय गॉड, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर अस, ऑलराइट। ठीक है, न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी सा है, फॉर्मूलाज 2 है ना, याद रखना। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा आपको, अगेन विल स्टार्ट विद गिवन, व्हाइट नहीं वी गोना हैव ग्रीन। ओके सो गिवन, सबसे पहला क्या गिवन है, वो हाइट ऑफ आवर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर्स। नाउ ये सब लिखने से पहले एक चीज मेंशन करता है, फर्स्ट विल राइट कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर हैविंग इज कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। फर्स्ट इज हाइट, h is 3 centimeters, next on a white screen. Okay, so white screen के बाद क्या लिखा? focal length, so f is 12 centimeters, and what we have is if the distance of the object from the mirror, thank you ma'am. Okay, object distance मतलब u equals to 18 centimeters. Now this thing यहाँ पे जरा मैं erase करता हूँ. Okay, this 12 will be negative and this u will be negative. कोई कमेंट्स में बता सकता है why I have written this thing? Focus
सॉरी फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। क्या रीजन हो सकता है? यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यूज देना गाइस, व्हाई हैव रिटन नेगेटिव? फटाक से कमेंट सेक्शन में बताओ क्यों नेगेटिव लिखा है मैंने, जल्दी कमान कमान। जिसका नाम सबसे ऊपर आएगा उसको मिलेगा शॉर्ट आउट, कमान। आई एम आयुष, ओके आयुष फ्रॉम निपनवेल एंड आदित्य, ओके कमान गाइस। यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने? यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, व्हाट इज द रीजन, आई हैव, क्या रीजन है मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है? कमान, क्या है रीजन, क्या है रीजन? कमान। वेरी गुड, द रीजन इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। रीजन क्या है? कार्टेशियन sign convention, where anything to the left or right, anything left or right to the mirror or a lens, mirror या लेंस कुछ भी हो, अगर लेंस है मिरर की कोई भी चीज लेफ्ट में है तो दैट विल बी नेगेटिव, राइट में है तो क्या होगा? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है सो इट विल बी पॉजिटिव एंड इफ इट इज डाउनवर्ड्स मिरर के नीचे तो इट विल बी नेगेटिव एंड हेंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ इज नेगेटिव। ये सब हो गए। व्हाट वी नीड टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? लिख लेते हैं टू फाइंड, अपॉन वी टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? दो चीजें, डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज v क्वेश्चन मार्क, दूसरा हाइट ऑफ इमेज h डैश क्वेश्चन मार्क। थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, बहुत जगह ले रहा है तो हल्का सा श्रिंक भी करते हैं ऐसा। क्या आप सबको दिख रहा है इतना? कम ऑन एवरीवन, कैन यू सी दिस? Okay, very good. Yajit, you have answered on the left hand side of the mirror. Very good, fantastic. I think Anushka has also answered sign convention. Very good. Srishant also left side. Fantastic. All right. So question आगे बढ़ते हैं. To find हो गया. What is the formula? Formula है अपना. Formula is वही m by h dash upon h equals. अच्छा, this is mirror formula, so we'll have negative over here and यहाँ पे भी हल्का चेंज होगा, 1 upon f equals to v. Previously we had negative, this time will be positive. So mirror formula lens formula में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइंस का डिफरेंस है. In this is mirror formula we have positive and here negative. lens में बस उल्टा हो जाएगा, this will become negative and this thing will become positive. Alright, इसको जरा मैं यहाँ से ना erase कर देता हूँ. I will try this. क्या select हो रहा है? नहीं select हो रहा है. Let me select back. Okay. ये हो गया. न्यूमेरिकल्स पे आते हैं. सब वैल्यूज इफ वी हैव हियर. ओके, देन प्रूफ. क्या आएगा सबसे पहले? वी नो दैट कॉमा, वी नो दैट कॉमा. सबसे पहले विल टेक दिस बिकॉज वी हैव u and f, so we can easily get the v. So 1 upon f equals to 1 by v plus 1 by u. Among these two, we know u का वैल्यू, f का वैल्यू, so we'll shift u on the side, v को हम अलग रखेंगे. So it will be 1 upon v equals to 1 upon v अकेला. We already have the f, right? तो ये side changes, sign changes, side changes, sign changes. 1 upon u negative. So we'll put other values. तो क्या आ जाएगा? 1 by v equals to f. f का वैल्यू is, guys come on, f का वैल्यू is negative 12. Positive. So positive नहीं, negative 12. 1 by minus 18. Now अभी क्या फटक से मन कर रहा होगा, मन कर रहा होगा, क्या मन कर रहा है सर? ये देखो ना नेगेटिव है, हाँ ऊपर भी देखो नेगेटिव. क्या करते हैं? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करना भाई, गलती हो जाएगी. इधर भी है ना नेगेटिव. इफ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया so this term will become positive, right? पर ये नेगेटिव रहेगा ना. एंड रूल क्या है? क्या रूल है फ्रैक्शंस का? जल्दी बताओ. न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है वो सेम होने चाहिए, उनका सेम साइन होना चाहिए. भाई एक पॉजिटिव नेगेटिव लेके कुछ कर सकते नहीं है. तो घाई में, जल्दी में इसको क्या नहीं करना है? यस, क्या नहीं करना है इसको? इसको फटक से पॉजिटिव करना नहीं है, वरना अपन अटक जाएंगे. समझा क्या? क्या हो जाएगा? हम अटक जाएंगे. क्लियर है? सो अभी वही करेंगे, इनको अलग नहीं करेंगे, अलग रखेंगे. सो अगेन कुछ कॉमन है दोनों. 12 में कोई नंबर जो कॉमन आता है, जो 18 की टेबल में कॉमन है, इट इज 36. तो नेगेटिव 36. ऊपर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से,
E से मल्टीप्लाई किया हमने किससे, यस ऑफ कोर्स किससे किया, 2 से, सो वी गॉट 1 अपॉन -36, 1 अपॉन v, सो v का वैल्यू इज -36 सेंटीमीटर्स, -36 सेंटीमीटर्स, यस। देखो now v का वैल्यू मिल गया, now just we'll put this value in this formula, so h dash which is height of image equals to minus v upon u, right? So what are the values, इसमें से हमें फाइंड करना है h2, so इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, so we'll get h dash equals to minus v into h upon u, out of which we can see guys यहाँ पे क्या है, h dash इक्वल्स टू माइनस ऑलरेडी है, इसका आंसर -36 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया, एच का वैल्यू इज 3 एंड यू का वैल्यू इज -18, सिंपल है यार, 1 जा 2 जा, तो एच डैश इज -6 सेंटीमीटर्स, -6 सेंटीमीटर्स। नाउ यू कैन सी v विच इज इमेज डिस्टेंस, उसका वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एंड हाइट ऑफ इमेज दोनों का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, so यहाँ पे लिखोगे एज v is negative, image distance negative, it is real image, it is real image, and in हमें हिंट भी दिया है, स्क्रीन पे आ रहा है ना, the image which is created on screen, जो भी इमेज हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है, that is real image, and the image which can be seen directly, जैसे घर पे मिरर है हमारे, and we can see our image into the mirror, मेरे कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, so that image is virtual image, and यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी have h, तो यहाँ पे लिखेंगे as h dash is negative, it is क्या, it is inverted image, inverted image, so you can see यहाँ पे we have whole numerical, okay, so क्या है, distance of image from the mirror is, distance of mirror image from the mirror is क्या है, it is 36 centimeter and height of image is 6 centimeters, okay, and we can say our image is magnified. So guys I hope आपको समझ में आया होगा, है ना, so this was the whole thing, pdf आपको इस लाइव के बाद, ठीक है, कुछ टाइम में will receive this pdf in description of this video। अगर आपने सेशन एंजॉय किया होगा, ऐसे बहुत सारे सेशन आ रहे हैं, tomorrow we have biology का सेशन सेम टाइम 8:13, ठीक है, सो मिस नहीं करिए एंड ज्वाइन करते हैं, एंड इस वीडियो का लिंक जो अभी होने लाइव्स है, इसका आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो विच आर नॉट पार्ट ऑफ वेदा, बाकी दोस्तों सबको इसका बेनिफिट होने दो, एंड इस एग्जाम में लेट्स रिवाइज एंड स्कोर अपना बेस्ट। थैंक यू, बाय गाइस, ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय। कमेंट्स में सब बाय कर रहे हैं ये